بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے ویورز، آج پھر اگلے ولاگ کے اندر دوبارہ حاضری ہے، دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور وہی محبت بھری باتیں اور معرفت الہی کی گفتگو۔ سائیں محمود بابا کے پاس میں پہنچا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت دے دیں، ان کے وقت پر ہی منحصر ہے، ان سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ معرفت کے پھول حاصل کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، سائیں محمود بابا وہاں سامنے موجود ہیں، یہ ذرا کیمرہ اس طرف گھمائیے، وہ سامنے سائیں محمود بابا موجود ہیں، تو ان سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ آج پھر آپ نے جنگلوں کا رخ کیا ہوا حضور۔ میں نے تجھے منع کیا تھا ابھی 2-3 دن مجھے ٹائم دینا، پھر پیچھے آ گئے ہو۔ میری مجبوری تھی جی، میں نے جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، میری مجبوری تھی، اس وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس جتنا بھی وہ مواد تھا سب ختم ہو گیا۔ اب میں نے کہا جو ہے نا جی، میرے ویورز بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی تو میں اگلی گفتگو آپ سے شروع کروں اور اگلی باتیں آپ کی کچھ نہ کچھ ہمیں شفقت فرمائیں، تھوڑا سا وقت دے دیجئے تو انشاءاللہ جو ہے نا جی ہماری ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ پہلے بھی میں آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ یہ جنگل کے اندر آپ آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں، تو آج پھر اس جنگل کی طرف آپ نے کیوں رخ کیا ہے؟ قاری صاحب یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جنگل جو ہے نا، جنگل ہو، پہاڑ ہو، تنہائی ہو، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ دنیا کی دلدل سے جو نا بچے رہتے ہیں، ہم جنگلوں کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ہمیں سکون ملتا ہے ادھر آ کے، تو اس لیے ہم جنگلوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کی ذات اور آپ جی جی، تو یعنی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ تاریخ پڑھیں، دیکھیں، سب نے تنہائی کی ہے اور دنیا سے دور ہوئے ہیں تو پھر ہی منزل عبور ہوتی ہے، مگر یہ دنیا تو پھر منزل عبور نہیں کرنے دیتی نا، یہ تو اپنے مسائل سامنے رکھتی ہے یا رنگ رنگ کے فتوے لگاتی ہے۔ تو یہاں ادھر تنہائی میں نہ کوئی غیبت ہے، نہ کوئی چغلی ہے، نہ کوئی کسی کی ملامت ہے، تو ہم آزاد ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے تو چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اب بہت سارے لوگ وابستہ ہو چکے ہیں جو گفتگو کو سنتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اگر وہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ چینل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، دیکھو چینل تو ہزارہ ہیں، بتانے والے بھی ہزارہ ہیں، اگر ہماری گفتگو سے کوئی حاصل نہیں کرتا، اس کو کوئی مفاد نہیں ملتا، تو میرا تو خیال ہے کہ ہماری محنت رہ گیا ہے۔ نہیں، بہت زبردست، الحمدللہ کی آہستہ آہستہ چینل کے ساتھ لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا سلسلہ جو تبلیغ کا آپ نے شروع کیا ہے، یہ الحمدللہ قاری صاحب جو ہے نا، مجھے ذہنی تکلیف جو ہے، دلی تکلیف جو ہے، وہ تو ہے رہی ہے کہ معاشرے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی انتہا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ دنیا سے دوری ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو ہمارا جو پیغام ہے، اگر وہ پیغام پہنچے، اگر وہ لوگ اس پہ عمل کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی منافع ہوگا اور ان لوگوں کو بھی منافع ہوگا، ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو اب اس وقت دنیا جہاں تک وہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اگر ایک دشمن کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی میت اس کو واپس کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب وہ ظلم ہوا ہے کہ جس نے اتنے انسانوں کو شہید کیا اور اس کے بعد وہ مانتے نہیں ہیں اور وہ لاشیں نہیں دیتے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھیڑیے سے آگے، جس طرح کے بھینسیں ہوتی ہیں نا، جی بھیڑیے سے طاقتور ہوتی ہے، جی لیکن بھیڑیا پہلے ڈراتا ہے ان کو، جی خوف زدہ کرتا ہے، تو جب خوف زدہ کرتا ہے، بھینسیں بھاگتی ہیں، تو بھیڑیا پیچھے سے حملہ کرتا ہے، جو بھینس پیچھے رہ جاتی ہے، صحیح، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جب بھاگیں گی، یہ بھینسیں کم ہو جائیں گی، جو رہ جائے گی اس کو ہم دبوچ لیں گے۔ تو اب ہم بھیڑ بکریاں بن چکے ہیں، تاکہ بھیڑیے ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں انسان بننا پڑے گا، ہمیں اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں وہ جو اپنے دین کا جو ہمیں پیغام ملا ہے، اس پہ ہمیں کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم بھیڑی بکری
भेड़ियों के शिकार हो जाएंगे, और हो रहे हैं। इससे ज्यादा क्या जुल्म। और ये आज आपके मिजाज के अंदर जो गुफ्तगू मुझे महसूस हो रही है, शायद आज आपका ज़हनी तौर पे जो है मैं डिस्टर्ब हूँ कि ये सानिया रीचौक की तरफ आपका इशारा है। हाँ जी वही। तो वहाँ तो सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, जो लोग वहाँ पूरी पे दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, कैमरा देख रहा है, शहादतें मिल रही है, लोग आंखें देखा वाकया सुना रहे हैं कि भाई हमने खुद देखा है, हमने खुद देखा है, आंखों से देखा है। जो आंखों से देखा हुआ, कैमरे की आंख देख रही है, दुनिया देख रही है, ये कहते कुछ हुआ ही नहीं, वहां गोली नहीं चली। तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? ये तो क्या बाबा जी, इससे बड़ा कोई पैगाम है कौम को? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, ये तो फिर मतलब एक मजबूरी बन गई है ना। मजबूरी तब बनती है जब हम इंसानियत से बाहर आ जाते हैं, इंसानियत के दायरे में नहीं आते, अपने कलमे को नहीं मानते, तब ऐसा होता है। अगर आज मुसलमान अपने कलमे पे खड़े हो जाएं, सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी। देखो पहले दौर में अगर किसी एक बंदे से कोई एक बंदे के साथ जुल्म होता था तो गांव वाले लोग 5, 7, 10 खड़े हो जाते थे कि भाई इसके साथ ज्यादती क्यों हुई है, तो अगली बार उससे कोई ज्यादती करने की जरूरत नहीं रखता था। अब एक के साथ ज्यादती होती है तो वो दरिंदा पूरे गांव में भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? कि उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, हर कोई दुम दबा के भाग जाता है, छोड़ो जी उसका मसला है। भाई आज उसका मसला है, कल को ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। आज इस तरह ये कहते हैं जी कि पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो अवामुन नास तो कुछ बुजुर्गान दीन की तरफ भी तवज्जो करके बैठी हुई है कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसी दुआ करे कि हमारे हालात बदल जाएं। ये किसी को, जब तक कौम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहेगी, कौम खुद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया नहीं करेगी, उतनी देर तक कुछ नहीं होगा। उम्मत का भी हाल तो बहुत बुरा है, सिलसिला एक अजीब सा चल निकला है। मैंने अक्सर ये कहता हूं कि भाई अगर अपने मुल्क को बचाना है, अपने दीन को बचाना है, अपने कलमे को बचाना है, तो अल्लाह की बारगाह में गिर जाएं, गिराजारी करें, रोएं अल्लाह की बारगाह से। एक दरवेश या फकीर की दुआ मांगने से कुछ नहीं होता। जब तक ये कौम खुद अल्लाह की बारगाह में नहीं गिरेगी और गिराजारी नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो फुकरा भी खामोश हो गई है, क्योंकि इतना हर बंदा तो जुल्म की तलवार लेके खड़ा है। जिसका दाल लगता है वो कहता है मैं कोठी बंगले बना लूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर चीज का, किसी का भी गला काटना पड़े तो वो काट देते हैं। वो कहते हैं हमारा बंगला खड़ा होना चाहिए। उसको पल घड़ी की खबर नहीं है कि अगला वक्त आना है या नहीं आना, मैंने इस बंगले में रहना है या नहीं रहना। अपनी कब्र का फिक्र खत्म हो गया है, खुदा का डर खौफ खत्म हो गया है। तो ये कैसे कौम सुधरेगी? तो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब को आना पड़ेगा, और इनकलाब बल्कि आ चुका है। अब कश्मीर की तरफ जाएं, दुनिया बाहर निकली है। वहाँ तो मतलब जो है ना जी, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग बाहर जब फरौनियत की इंतहा होती है तो वहां मेरा अल्लाह करीम मूसा भेजता है। सही। तो जब मूसा आता है तो फरौन खत्म हो जाता है। तो अब उस मूसा के इंतजार है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह करीम वो मूसा जरूर भेजेगा जो इस जुल्म का खात्मा करेगा, और अनकरीब ये खात्मा होने वाला है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि इनकलाब आ चुका है, लोगों के अंदर तब्दीली आ चुकी है। देखो जहां भी कुफर की इंतहा होती है वहां इस्लाम आता है। सही। जहां जुल्म की इंतहा होती है उथे इंसानियत को ना कोई मूसा आता है। यानी लोगों के नजरियात बदल रहे हैं, बदल चुके हैं जी, बदल चुके हैं। अभी वो हिम्मत उनके अंदर जो है वो अभी नहीं आई, और बहुत सारे लोग बल्कि वो हिम्मत कर चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह करीम बहुत जल्द ये आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये तब्दीली आ चुकी है, वरना ये पूरी दुनिया में एक जंग फैल जाएगी। यानी कि मतलब लोगों के नजरियात बदलने से या ये जो इनकलाब वाक़ई हो रहा है तो लोगों की हालत तब्दील हो जाएगी, और ये यानी जो निज़ाम है, मुआशरती निज़ाम हमारे पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, यानी इसके अंदर तब्दीली वाक़ई होने वाली है।
इस मुल्क पाकिस्तान ने एक वक्त आना है कि गैर मुस्लिम का जो है ना इधर कह लो कि जो भी मामलात है वो अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान तय करेगा। सही, यानी एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जब इनके अंदर वो ईमान पैदा हो गया, वो कलमे की ताकत पैदा होगी, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है जब उसको हमने मान लिया तो समझ लो कि ये हर चीज तुम्हारी वापस आपके पास आ जाएगी, जो तुम्हारा हक है। देखिए पहले वो वक्त था कि अंग्रेज लोग मुसलमानों पे फख्र करते थे, जब ये बाहर जाते थे तो वो लोग इंतजार करते थे कि यार इसको मेहमान हमने अपने यहाँ ठहराना है, तो वो उस मेहमान को वारी नहीं मिलती थी। आज वो वक्त है कि मुसलमान का नाम सुनते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं ये चोर है। तो आपने क्या अपने दीन के साथ, क्या आप मुखलस है? आप अपने दीन के साथ मुखलस नहीं है, अपने कलमे के साथ मुखलस नहीं है, बल्कि अपने खुद अपने आप के दुश्मन है, क्योंकि ये चंद घड़ी की जिंदगी है जिसके लिए आपने ये सारा कुछ किया है। दीन खो बैठे हैं, कलमा खो बैठे हैं, ईमान खो बैठे हैं, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। तो अब हम भी मजबूर हो गए हैं कि दूसरे वो अंग्रेजों की सिफत तारीफ करते हैं कि यार वो लोग देखो मजदूर को मजदूरी पूरी देते हैं और जानवर मर जाए तो उसका भी केस चलता है, वो पूरा इंसाफ मिलता है। इधर तो बंदे मर रहे हैं, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल, ये जानवर तो बहुत जानवर से बदतर हो गए। अरब ममालिक के अंदर अगर एक्सीडेंट के अंदर मतलब एक कुत्ता एक्सीडेंट में आ जाता है और उसकी टांग टूट जाती है तो फौरी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उसको पट्टियां करवाई जाती हैं, पता नहीं कितने दिन तक उसका इलाज करवाया जाता है बाकायदा तौर पे। लेकिन यहाँ बंदे मर रहे हैं तो कोई पूछ नहीं। कारी साहब ये दमादम मस्त कलंदर करना पड़ेगा, इन हक वाले लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये खड़े नहीं होते तब तक ये कुछ नहीं होगा। ये इनकलाब लाना पड़ेगा, वो हुसैनी लोग खड़े होंगे तो इनकलाब आएगा। जब तक ये हुसैनी खुमैश बैठे हैं ये इनकलाब नहीं आएगा। ये तो वही बात हो गई ना जी कि आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तान पैदा। आज भी अगर डॉक्टर साहब ने बड़ी बेहतरीन तर्जुमानी की थी मुसव्विर पाकिस्तान ने, अगर आज भी इस कौम की हालत बदल जाए, इनके दिल बदल जाएं और ये कम अज कम इस ख्याल के अंदर आ जाएं कि जी हमें अपना हक हासिल करना है, तो मेरे ख्याल में तब्दीली वाकई हो सकती है। मैं तो इस फिक्र में हूँ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, ये कौन सा मुंह दिखाएंगे, उसके उम्मती होने का क्या कहेंगे? क्या हम उम्मती हैं? क्या उस कलमे का जो इन्होंने हशर किया, उसके दीन का जो हाल किया है, ये क्या जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी तो जो हालत हो रही है ना जी, ना शर्म नबी ना खौफ खुदा। तो आज के लिए कारी साहब मेरा ख्याल है इजाजत है जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो अगली गुफ्तगू के अंदर फिर अगले विलाग के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। बाबा जी आज काफी जलाल के अंदर हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं कोशिश करता हूँ, मुमकिन है कि मेरा अगला विलाग भी तैयार हो जाए, लेकिन बहरहाल आपने बात को समझ लिया। आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या हालात फकीर लोगों के क्या हालात हो गए हैं, अवामुन नास के क्या हालात हो गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, सिस्टम क्या बन गया है, निजाम क्या बन गया है। तो बार बार बाबा जी का इसी बात पर जोर है कि अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह के अंदर झुक जाइए, उसकी बारगाह में दुआ मांगिए, अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में गिरिया गुजारी कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालात को बदल दे, हमारे जालिम लोगों को भी हिदायत मिल जाए और हमारा निज़ाम कुछ तब्दील हो, और ये कम अज कम जुल्म का जो एक सिलसिला चल निकला है ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपका भी हामी व नासिर हो, हम सब का भी हामी व नासिर हो। अंदर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।